It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. Yes, good evening to all of you. Good evening to all of you. So everyone please confirm, am I audible, am I visible clearly to all of you? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एक बार सभी लोग कंफर्म करेंगे इन द चैट बॉक्स. So how are you all? I hope you all are good and preparing well for your exams. और आज हम लोग अपने सर्वेइंग के डिस्कशन को कंटिन्यू कर रहे हैं. तो इन द लास्ट क्लास, कल की क्लास में हम लोगों ने सर्वेइंग के बारे में क्या पढ़ा था? वी हैव जस्ट स्टार्टेड विद द कंपास सर्वे. कंपास सर्वे का डिस्कशन स्टार्ट किया था. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बेसिक कंसेप्ट लाइक मेरिडियन क्या होता है, बियरिंग क्या होता है, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल एंगल, व्हाट इज द रेफरेंस. ऑल दीज पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास. और आज इसी के डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे. कंपास सर्वे आपके गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, इंजीनियरिंग सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से या बाकी एग्जाम्स की मैं अगर बात करूं, दैट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए. नो नीड टू रिमेंबर एनी फॉर्मूला इन द केस ऑफ कंपास सर्वे. फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम होगा. उसको हम लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं, व्हाट शुड बी द करेक्ट अप्रोच, दैट ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. ओके, सो डू लाइक एंड शेयर द सेशन. सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे so that other students can also join the session. तो लेट्स स्टार्ट द क्लास. आज की क्लास का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. तो इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट टिल द लास्ट क्लास, यू कैन आस्क योर डाउट. अगर लास्ट क्लास तक के डिस्कशन को किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क योर डाउट, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू. तो आज का जो डिस्कशन होने वाला है, आज हम लोग कंपास सर्वे पढ़ने वाले हैं. चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास. So before starting the class, let me introduce myself for those who are new to this channel or watching this class first time. So I am Kshitij Sachan. I have completed my MTech in structures,
qualified GATE 4 times with good rank. I've also qualified various state engineering services exam, AE exam of various states, assistant engineer exam. My teaching experience in the field of GATE and DSE is more than 5 years. I am having 3 years research experience too. और सब्जेक्ट जो मैं कंप्लीट करने वाला हूं, आई विल डील विद द ट्रांसपोर्टेशन, सर्वेइंग एंड आरसीसी. दिस इज माय रेफरल कोड, दैट इज KKS10. व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ दिस कोड? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो दिस कोड इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू if you want to start your preparation with Unacademy for GATE and DSE. For that, just download the Unacademy app if you have not downloaded yet and use this code, that is KKS10, to activate your free plan. तो Unacademy एक फ्री प्लान आपको प्रोवाइड कर रहा है आपकी प्रिपरेशन के लिए. आप सभी उस फ्री प्लान को एक्टिवेट कर सकते हैं. डाउनलोड द Unacademy ऐप एंड यूज दिस कोड टू एक्टिवेट योर फ्री प्लान. इन द फ्री प्लान व्हाट यू विल गेट, आप सभी एजुकेटर्स की स्पेशल क्लासेस को देख सकते हैं, फ्री लाइव क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, क्विजेस विल बी देयर, लाइव टेस्ट सीरीज विल बी देयर, एंड यू कैन आल्सो रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द Unacademy Combat. So these are the features that you are going to get absolutely free of cost. For that, just you have to download the Unacademy app and use this code to activate your free plan. If you want to start your preparation with Unacademy in a systematic way, in an organized way, then you can also plan your subscription. Two types of subscription are available. One is Plus and second is Iconic. In the case of Plus, what you will get, live classes will be there, live batches will be there, crash courses will be there, weekly test will be there to analyze your performance, doubt solving sessions will be there. So every fourth class on the Plus platform will be related to your doubt. Rank improvement batches will also provided to you. Subject we are going to cover in both language, English and Hindi, so there will be no language barrier. जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में अपने डिस्कशन को स्टार्ट कर सकते हैं. रेगुलर बैचेस भी मिलने वाले हैं आपको. रेगुलर बैचेस विल बी देयर फॉर गेट एंड ESE. तो गेट और ESE के रेगुलर बैचेस भी मिलने वाले हैं. तो दीज आर द फीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन. वन मोर ऑप्शन इज अवेलेबल, दैट इज आइकोनिक. इन द केस ऑफ आइकोनिक व्हाट यू विल गेट, तो वट एवर फीचर्स आई हैव एक्सप्लेन फॉर द प्लस, दे आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द केस ऑफ आइकोनिक. इन एडिशनल टू प्लस फीचर्स you will get study planner will be there, personal coach, personal mentor will be there, study material will also provided to you, to DPP sets will be there, study booster sessions will be there, and personalized test analysis will be there. So these are the features of Iconic subscription. You can plan as per your suitability. So this is the very important information for all of you, those who are targeting for GATE 2022, जो भी GATE 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू. तो प्लस पे बैच स्टार्ट हुआ है. दिस इज द न्यू बैच डिटेल. तो 8th of Feb से वी हैव स्टार्टेड अ बैच फॉर GATE 2022. दिस बैच विल बी ऑन द प्लस, सो कंप्लीट योर सब्सक्रिप्शन प्रोसेस टू ज्वाइन दिस बैच. Similarly, those who are targeting for GATE 2023, the batch have been also started from same date 8th of Feb. तो आप सभी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं just by completing your subscription process using my referral code, that is KKS10. Those who are targeting for ESE, जिनका टारगेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम है, तो दिस इज द इंफॉर्मेशन. न्यू बैच इज गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम टुमारो. तो कल से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है. Yes, you can also enroll for this batch just by completing your subscription process using this code, that is KKS10. This is the detail of the other batch. तो प्लस पे और कौन कौन से बैचेस मिलते हैं इसकी डिटेल है. तो you will find there will be a doubt clearing batches will be there. ESE के लिए बैचेस मिलने वाले and batches for GATE will be there. So these are the other batches also by the top educator of Unacademy that you are going to see. This is my Unacademy profile. You can search this name on the Unacademy app, or you can visit this link. Link is provided in the description box of this video. In this profile, what you will get? You will get the free classes. You will get the free classes related to the highway engineering. तो हाईवे इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्लासेस मिलने वाली. रेलवे एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग डिस्कशन विल बी देयर. You will also find the lectures related to the RCC and survey. तो उन सभी lectures को attend कर सकते हैं आप just by visiting this profile. You can follow this profile so that you will get regular updates about all my upcoming special classes. We have created a Telegram group for all of you that you can see. Unacademy GATE and ESE CE.
In this group, you all can join this group. This is absolutely free of cost for all of you. In this group, you will get the PDFs of all the classes. सभी classes के PDF मिल जाएंगे YouTube के. And you are also going to get the links of my all upcoming special free classes. तो special free classes के जो भी updates होंगे वो सभी इस टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड किए जाएंगे. तो आप सभी इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू. दीज आर द फेसबुक पेजेस. ऑल ऑफ यू कैन ज्वाइन दीज पेजेस टू गेट कनेक्टेड विद अस. आप सभी इन पेजेस के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. और लास्ट क्लास में सर हम लोग बात कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द कंपास सर्वे. तो कंपास सर्वेइंग का ऑब्जेक्टिव में समझ गया था. ऑब्जेक्टिव इज द मेजरमेंट ऑफ द बियरिंग्स. हम बियरिंग्स की बात करने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल्स की बात करने वाले हैं. वी हैव टॉक्ड अबाउट द मेरिडियंस. तो मेरिडियन में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द ट्रू मेरिडियन, अबाउट द मैग्नेटिक मेरिडियन. दैट पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड. और हम लोगों ने एक पॉइंट डिस्कस किया था रिप्रेजेंटेशन. कैसे कैसे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात की थी. वी हैव टॉक्ड अबाउट द WCB एंड RB और QB सिस्टम. तो WCB में कैसे हम बियरिंग्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. RB और QB सिस्टम में रिड्यूस्ड बियरिंग और क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में किस तरीके से हम बियरिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ऑल दैट पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास. एट द लास्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कन्वर्जन. आपने कन्वर्जन की भी बात की थी कि हाउ वी कैन कन्वर्ट द WCB सिस्टम टू RB और QB सिस्टम. या फिर अगर कोई रीडिंग मेरे को RB और QB सिस्टम में दी गई है तो मैं उसको कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं WCB सिस्टम में. तो आई होप यहां तक का डिस्कशन आप सभी को क्लियर है. यहां तक की सारी बातें क्लियर है. तो कंफर्म इन द चैट बॉक्स द डिस्कशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो. नाउ वी विल टेक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. और अगला टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें, तो वी आर हेयर हम लोग कंपास सर्वे में डिस्कशन कर रहे हैं. दीज 2 चैप्टर्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. तो अभी प्लेलिस्ट भी आपकी मिल जाएगी आपको. फाइंड द प्लेलिस्ट ऑफ द सर्वेइंग इन द यूट्यूब चैनल. और आप सभी क्लासेस को, प्रीवियस क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं. प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको चैट और कमेंट बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दे रहा हूं. तो यू विल गेट द लिंक. इसी क्लास की आप चैट और कमेंट बॉक्स में देखें तो डायरेक्टली प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा. जिनकी भी पुरानी क्लासेस मिस हो गई हैं, आप सभी पुरानी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं. ऑल द लेक्चर्स, ऑल द डिस्कशन इज इंपॉर्टेंट. ओके, तो सी द नेक्स्ट टॉपिक. अगले टॉपिक की बात कर लेते बेटा. और अगला टॉपिक जो है वो है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं, वी विल टॉक अबाउट द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. सर ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता क्या? तो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. तो कल हम लोगों ने बात की थी बेटा ट्रू मेरिडियन की. एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द मैग्नेटिक मेरिडियन. ये डिस्कशन याद है सभी को? ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन का डिस्कशन सभी को याद है. आई होप द डिस्कशन इज क्लियर. आपने बोला था सर अगर अर्थ की एक्सिस पे टिल्ट नहीं होता तो जो आपको पोल्स मिलते हैं आप उनको बोलते हैं ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ. उनको आप बोलते हैं ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ. तो कहना ही से दिस इज द ट्रू मेरिडियन. इसको मैं ट्रू मेरिडियन बोल सकता हूं. बट ड्यू टू द टिल्ट ऑफ अर्थ इट्स एट इट्स ओन एक्सिस, जिस टिल्ट की वजह से आपको दिखने वाला है कि देयर इज सम एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन. लेट्स से दिस इज द मैग्नेटिक नॉर्थ, दिस इज द मैग्नेटिक साउथ, दिस येलो वन इज द ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ. तो लाइन द कनेक्टिंग द ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ, उसको आपने बोला ट्रू मेरिडियन. लाइन कनेक्टिंग द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ, उसको आपने बोला मैग्नेटिक मेरिडियन. क्या मैं बोल सकता हूं लेट्स से दिस इज द एंगल थीटा, ये एंगल थीटा दिख रहा है मुझे. तो व्हाट इज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन? फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले इस बात को समझते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता क्या है. कुछ नहीं है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ये एंगल थीटा है. क्या मैं इसको बोल सकता हूं इट इज द हॉरिजॉन्टल एंगल, इट इज द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन. कैन आई से लाइक दिस? तो जो भी आपको एक थीटा एंगल दिख रहा है बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, इसी को आपने बोला थीटा और इसी को हम बोल रहे हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. द पोजीशन ऑफ द ट्रू मेरिडियन इज नॉट गोइंग टू बी चेंज. ये आपकी हमेशा फिक्स रहने वाला. ट्रू मेरिडियन विल ऑलवेज फिक्स
देयर विल बी चेंज, देयर विल बी वेरिएशन इन द केस ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन की पोजीशन बदल सकती है, मैग्नेटिक मेरिडियन की पोजीशन क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो सर क्या ये थीटा, सर क्या ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन सेम रहने वाला है? नहीं। तो आप एक पॉइंट यहां देख सकते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की अगर बात करें बेटा, इज नॉट कांस्टेंट, इज नॉट कांस्टेंट even for a particular place। इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की वैल्यू, थीटा की वैल्यू लगातार चेंज होने वाली। तो सर ये वेरिएशन जो चेंज आ रहे हैं, जो चेंज आ रहे हैं, चेंज इन मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज नोन एज वेरिएशन। इसी को आप बोलते हैं वेरिएशन। तो यहां से आपका एक ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है, उस ऑब्जेक्टिव सवाल की बात कर लेते हैं। तो ये जो वेरिएशंस होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएशन इन द केस ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो आपने बोला डाईयूर्नल वेरिएशन, तो पहला आपको इस वेरिएशन के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज द डाईयूर्नल। अभी आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, डोंट वरी। सेकेंड इज योर annual variation will be there, annual variation will be there. Next is the secular variation, next is the secular variation, and last is the irregular variation। अब जरा इनको समझते हैं। अगर किसी भी प्लेस में मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में जो वेरिएशन हो रहा है, द वेरिएशन बेस्ड ऑन डेली बेसिस, डेली बेसिस पे जो वेरिएशन हो रहा है उनको आपने बोला डाईयूर्नल वेरिएशन। एनुअल वेरिएशन की अगर बात करें तो आप एनुअल का मतलब सभी जानते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ ईयर, तो ईयरली वेरिएशन को आप बोल सकते हैं एनुअल वेरिएशन। सेकुलर वेरिएशन का बोले तो दैट इज द ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से ओवर 150 ईयर्स, ओवर 150 ईयर्स जो वेरिएशन आप ऑब्जर्व कर रहे हैं इन द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, उनको आप बोलने वाले सेकुलर वेरिएशन। और इररेगुलर वेरिएशन में ऑब्वियसली कोई पैटर्न, नो पैटर्न विल बी देयर। इररेगुलर आप इसीलिए इसको बोल रहे हैं बिकॉज इसका कोई पैटर्न नहीं है, इसकी कोई गाइडलाइंस नहीं है। एक नोट पॉइंट आपको बेटा हमेशा याद रखना है, ये आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, तो एक ऑब्जर्वेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। इफ आई टॉक अबाउट द डाईयूर्नल वेरिएशन, अगर हम डाईयूर्नल वेरिएशन की बात करें, इज जनरली मोर इन समर, is generally more in summer as compared to winter। तो ये ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन है जो आपको फैक्ट है, नॉलेज है जो आपको पता होना चाहिए। डाईयूर्नल वेरिएशन इज जनरली मोर इन समर एज कंपेयर टू द विंटर। तो अभी तक मैंने क्या बताया, अभी तक मैंने आपको सिर्फ एक बात बताई, दैट इज अबाउट द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की हम लोगों ने बात कर ली, आज आप समझ गए हैं। तो इट इज द हॉरिजॉन्टल एंगल, लिख देता हूं, इट इज द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। चलो अगला बात समझते हैं। सर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिक्लिनेशन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिक्लिनेशन, इसकी बात कर लेते हैं। तो बेटा अगर मैं डिक्लिनेशन की बात करूं तो यू पीपल आर गोइंग टू टेल मी, तो क्या नहीं बदलने वाला है? द पोजीशन ऑफ द ट्रू मेरिडियन इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। द पोजीशन, ये बात मैंने समझ ली, हर जगह फिक्स रहने वाला ट्रू मेरिडियन। द पोजीशन ऑफ द ट्रू मेरिडियन इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। और पोजीशन अगर बदलेगी तो किसकी बदलेगी? द पोजीशन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन कैन चेंज। तो ये येलो वाला मेरिडियन जो है मेरा, दैट इज लेट्स से दिस इज द पोजीशन ऑफ द ट्रू मेरिडियन, लेट्स से दिस इज द पोजीशन ऑफ द ट्रू मेरिडियन। अब देयर आर टू पॉसिबिलिटी, मैग्नेटिक मेरिडियन की पोजीशन आपकी कुछ इस तरीके की हो सकती है, मैग्नेटिक मेरिडियन की पोजीशन कुछ आपकी इस तरीके की भी हो सकती है। आप सभी को पता है व्हाट आर द डिफरेंट डायरेक्शन, तो आप इसको बोलते थे ईस्ट, इसको बोलते थे वेस्ट। सिमिलरली हियर यू विल आल्सो फाइंड द ईस्ट एंड हियर यू विल आल्सो फाइंड द वेस्ट। अगर मैं बोलूं दिस इज गोइंग टू बी द मैग्नेटिक मेरिडियन, दिस इज गोइंग टू बी द मैग्नेटिक मेरिडियन,
मैं पूछूं व्हाट इज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, व्हाट इज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, तो दिस एंगल थीटा विल बी द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एंड हेयर दिस एंगल थीटा विल बी द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. तो वी कैन रिप्रेजेंट द डिक्लिनेशन इन टू वेज. आप दो तरीके से डिक्लिनेशन की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देखो क्या है, अरे अगर तुम्हें लगता नहीं कि मैं इसको बोल सकता हूं दिस इज योर ईस्टर्न डिक्लिनेशन, ये थीटा वी आर मेजरिंग टुवर्ड्स द ईस्ट, तो इसी को मैं बोल सकता हूं ईस्टर्न डिक्लिनेशन. बोलो बेटा, कैन आई से इट इज द ईस्टर्न डिक्लिनेशन? क्या मैं इसी को बोल सकता हूं क्लॉकवाइज डिक्लिनेशन? क्या मैं इसी बात को बोल सकता हूं क्लॉकवाइज डिक्लिनेशन? जनरली हमारे नोटेशन से रहते हैं कि हम क्लॉकवाइज को लेते हैं पॉजिटिव, तो क्या मैं आज के बाद इसको बोल सकता हूं पॉजिटिव डिक्लिनेशन? सबका मतलब एक ही है, मींस द पोजीशन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन इट टुवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट की तरफ है फ्रॉम द ट्रू मेरिडियन. तो आप इसको ईस्टर्न डिक्लिनेशन बोल सकते हैं, आप इसको क्लॉकवाइज डिक्लिनेशन बोल सकते हैं, आप इसको पॉजिटिव डिक्लिनेशन बोल सकते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट. सिमिलरली अगर मैं इधर सेकंड एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं दिस इज द वेस्टर्न डिक्लिनेशन? ये सभी टर्मिनोलॉजी आपके क्वेश्चंस में यूज होती है. अगर उसने बोल दिया वेस्टर्न डिक्लिनेशन, अगर उसने बोल दिया एंटी क्लॉकवाइज डिक्लिनेशन, अगर उसने बोल दिया नेगेटिव डिक्लिनेशन, तो इट्स अंडरस्टूड द एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट दिस केस. तो इसी को मैं बोल सकता हूं दैट इज योर एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज योर एंटी क्लॉकवाइज डिक्लिनेशन. इसी को मैं बोल सकता हूं बेटा नेगेटिव डिक्लिनेशन, नेगेटिव डिक्लिनेशन. तो in this way we can represent the two types of declination. One is the eastern declination, clockwise declination, positive declination, or the another one is the western declination, anti-clockwise declination and negative declination. ये तो बात हो गई टाइप्स ऑफ डिक्लिनेशन की. आई होप द डिस्कशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो once again see the discussion. If anyone having any doubt at any point till now whatever we have discussed, you can ask your doubt. आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं. अब इससे प्रॉब्लम कैसे आता है एग्जाम में ये समझते हैं. तो यस, डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो आपको अलग अलग एग्जाम्स में मिलने वाले फ्रॉम दिस टॉपिक. तो अब देखो तीन चीजें हो गई, हम लोगों ने पढ़ लिया. ट्रू मेरिडियन की बात कर ली, ट्रू बियरिंग की बात कर ली, वी हैव टॉक्ड अबाउट द मैग्नेटिक बियरिंग, वी हैव टॉक्ड अबाउट द मैग्नेटिक बियरिंग की बात कर ली हम लोगों ने. और अभी हम लोगों ने कंसेप्ट डिस्कस कर लिया मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का. वी हैव आल्सो डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. इन तीनों पे बेस्ड आपके प्रॉब्लम आते हैं, इन तीनों पे बेस्ड आपके प्रॉब्लम आते हैं. तो कैसे आते हैं, लेट्स सी कैसे प्रॉब्लम आपको एग्जाम्स में मिलने वाले. यू विल फाइंड वेरी फ्रिक्वेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डिक्लिनेशन. और कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात तुम्हें यह ध्यान रखनी है. द पोजीशन ऑफ द मैग्नेटिक ट्रू मेरिडियन इज फिक्स. ट्रू मेरिडियन की पोजीशन में कोई चेंज आने वाला नहीं. तो दिस इज गोइंग टू बी योर ट्रू मेरिडियन. ऑलवेज ड्रॉ द डायग्राम, ऑलवेज ड्रॉ द डायग्राम. जब कभी भी ऐसे सवाल दिखने वाले तो सबसे पहले हम लोग उसका डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे और उसके बेसिस पे सिंपली बोल देंगे. अब सवाल में अगर फॉर एग्जांपल दिया गया है, सवाल में बोला गया है इफ द डिक्लिनेशन इज 5 डिग्री ईस्ट. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर आपको 5 डिग्री ईस्ट का डिक्लिनेशन दिया गया था तो कहना इससे दिस इज गोइंग टू बी द पोजीशन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन. यह आपके मैग्नेटिक मेरिडियन की पोजीशन होने वाली है. एंड दिस एंगल दे आर प्रोवाइडिंग दैट इज द 5 डिग्री. दैट एंगल दे आर प्रोवाइडिंग दैट इज 5 डिग्री. अब सवाल में आपसे पूछेगा देयर इज अ लाइन, कोई एक लाइन है. बहुत सिंपल तो सवाल आते हैं. उसका ट्रू मेरिडियन गिवन होगा आपको या मैग्नेटिक मेरिडियन गिवन होगा. ट्रू मेरिडियन गिवन होगा या मैग्नेटिक मेरिडियन गिवन होगा. फॉर एग्जाम्पल द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी इज 60 डिग्री. दिस इज ऑल्सो गिवन टू यू. तो यार सबसे पहले इस लाइन को लोकेट कर ले, सबसे पहले इस लाइन को लोकेट कर ले. तो लेट्स से दिस इज द लाइन. और अगर मैं बेटा बात कर रहा हूं मैग्नेटिक मेरिडियन की, तो आपको ध्यान रखना है फॉर द मेजरमेंट ऑफ द मैग्नेटिक बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग को मेजर करने के लिए व्हाट वाज योर रेफरेंस. रेफरेंस क्या था?
आपने बियरिंग का मतलब बोला था हॉरिजेंटल एंगल, तो ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग बोथ आर द हॉरिजेंटल एंगल फ्रॉम एनी रेफरेंस लाइन। इन द केस ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन आपने बोला था इन द केस ऑफ मैग्नेटिक बियरिंग द रेफरेंस वाज द मैग्नेटिक मेरिडियन। इन द केस ऑफ ट्रू बियरिंग ऑफ एनी लाइन द रेफरेंस वाज द ट्रू मेरिडियन। यही तो डिफरेंस था दोनों बातों में। तो अगर बोलना मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द लाइन ए बी इज 60 डिग्री, तो कहना इससे दिस एंगल दे आर गोइंग टू गिव इन, दिस एंगल इज गोइंग टू बी 60 डिग्री। सवाल में पूछेगा व्हाट विल बी द ट्रू बियरिंग ऑफ द लाइन, व्हाट विल बी द ट्रू बियरिंग ऑफ द लाइन। तो मुझे नहीं लगता इसको करने में किसी को कोई प्रॉब्लम है। तो लेट्स से दिस इज द लाइन ए बी, इस लाइन की बात कर रहे थे, तो मैं लिख सकता हूं ट्रू बियरिंग ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू, दिस इज गोइंग टू बी 60 प्लस 5, that will be equal to 65 degree. Yes, that will be equal to 65 degree. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और एग्जांपल दिखा दीजिए सर, थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा। तो फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग द ट्रू बियरिंग ऑफ द लाइन इज 70 डिग्री, ट्रू बियरिंग ऑफ द लाइन इज 70 डिग्री एंड द डिक्लिनेशन एट द प्लेस इज गिवन एज 7 डिग्री वेस्ट। द डिक्लिनेशन इज गिवन एज 7 डिग्री वेस्ट। What will be the magnetic bearing of the line? सॉल्व करो और बताओ What will be the magnetic bearing? ये दूसरा क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट अप्लाई करो, यू विल गेट योर आंसर। अप्लाई द सेम कंसेप्ट, यू विल गेट योर आंसर, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। इट इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू ऑल कैन सॉल्व। और ऐसे क्वेश्चन आपको फ्रीक्वेंटली मिलने वाले हैं हर एग्जाम में। इन ऑल द एग्जाम यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो नो नीड टू रिमेंबर एनी फॉर्मूला फॉर दिस इज प्लस और माइनस, सिंपली बी रिस्ट्रिक्ट विद द कंसेप्ट और कंसेप्ट को अप्लाई कर लेंगे। चलो तो सी द सॉल्यूशन पार्ट। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। बेटा कुछ भी हो जाए एक चीज नहीं बदलेगी, द पोजीशन ऑफ द ट्रू मेरिडियन इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, द पोजीशन ऑफ द ट्रू मेरिडियन इज नॉट गोइंग टू बी द चेंज। डिक्लिनेशन दे रखा गया 7 डिग्री वेस्ट, डिक्लिनेशन दे रखा गया 7 डिग्री वेस्ट। कैन आई से दे आर प्रोवाइडिंग दिस एंगल, दे आर प्रोवाइडिंग दिस एंगल, और ये एंगल दे रखा गया आपको 7 डिग्री। दिस एंगल दे हैव प्रोवाइडेड दैट इज 7 डिग्री। बिल्कुल सही है। बोले ट्रू बियरिंग ऑफ द लाइन इज 70 डिग्री, तो लेट्स लोकेट द लाइन। तो फॉर एग्जांपल दिस इज द लाइन, दिस इज द लाइन ए बी, और ये ट्रू मेरिडियन से मेजर आपने एंगल किया था एंगल, दिस इज गोइंग टू बी द ट्रू बियरिंग, और दिस इज गिवन एज 70 डिग्री, दिस इज गिवन एज 70 डिग्री। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक मेरिडियन, व्हाट इज द मैग्नेटिक मेरिडियन, ये पोजीशन आपको पता है, दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन। वेयर इज द मैग्नेटिक मेरिडियन? नाउ वी हैव टू मेजर द एंगल, नाउ वी हैव टू मेजर द एंगल दैट इज फ्रॉम मैग्नेटिक बियरिंग मेरिडियन। तो कहना इसे दिस एंगल, दे आर टॉकिंग अबाउट दिस कंप्लीट एंगल। तो क्या मैं लिख सकता हूं मैग्नेटिक बियरिंग विल बी इक्वल टू, दिस इज गोइंग टू बी 7 डिग्री, दिस इज गोइंग टू बी 70 डिग्री, दिस इज गोइंग टू बी 77 डिग्री, दिस इज गोइंग टू बी 77 डिग्री। एक बार सभी लोग डिस्कशन को देख लें। इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट एट एनी पॉइंट यू कैन आस्क योर डाउट। तो ये तो आपको WCB में दे रखा गया, हो सकता है क्वेश्चन में दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड द डेटा इन द RB और QB सिस्टम। तो कहीं ना कहीं RB और QB सिस्टम में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो आई विल ऑलवेज रिकमेंड व्हेनेवर वी विल सी द डेटा इन द RB और QB फॉर्म, जब क्योंकि उसमें डायरेक्शंस रहती हैं, तो जब कभी भी हम लोग रिड्यूस्ड बियरिंग या क्वाड्रेंट बियरिंग के फॉर्म में डेटा को देखने वाले, इट विल बी ऑलवेज बेटर कि आप उसको सबको चेंज कर लें WCB सिस्टम में। बहुत कम टाइम लगेगा, इट विल हार्डली टेक 10 to 20 सेकंड। यस, वी कैन सिंपली चेंज द RB और QB रीडिंग सिस्टम इनटू द WCB सिस्टम, और एक बार WCB में चेंज करने के बाद सॉल्व योर क्वेश्चन एंड रिपोर्ट योर आंसर इन RB और QB सिस्टम। तो कन्वर्जन हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था, कन्वर्जन में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, हम RB से QB, QB से RB आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो चांसेस ऑफ एरर, मिस्टेक के चांसेस कम हो जाएंगे आपके। अदरवाइज सम चांसेस ऑफ एरर इज देयर कि ड्यू टू द डायरेक्शन की वजह से, रिप्रेजेंटेशन की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर आप कंफर्टेबल है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये कि सवाल सही सॉल्व होना चाहिए। The ultimate objective is very simple, that we want to solve the question in a correct manner. जो आपको अच्छा लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं, there is no problem with that. तो everyone please confirm in the chat box, the discussion about the declination is clear to all of you.
डिक्लिनेशन का, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का कंप्लीट डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया। आई हैव आल्सो डिस्कस द टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू कैन गेट फ्रॉम दिस टॉपिक, और आप सभी अब क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर में। आफ्टर अटेंडिंग द डिस्कशन आप सभी, तो मैं बोलने वाला हूं कि आप सभी लीनियर मेजरमेंट तक के सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि वी आर गोइंग टू सॉल्व द गेट एंड ईएससी प्रीवियस ईयर। तो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, आप उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। वी हैव आल्सो डन विद द चैप्टर नंबर 2 दैट वाज द लीनियर मेजरमेंट एंड चेन सर्वे, आप उसके क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। वेरी सून वी आर गोइंग टू कंप्लीट द कंपास सर्वे आल्सो, फिर हम लोग उसके क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट करने वाले। क्लियर है? चले आगे, चलो नेक्स्ट कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट कंसेप्ट, और नेक्स्ट कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपको एग्जाम में सवाल मिलते रहते हैं। दैट इज द एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप और डिप्रेशन, इसकी बात कर लेते हैं। अब ये एंगल ऑफ डिप और डिप्रेशन क्या है, इसकी बात को समझते हैं। तो आप सबसे पहले है क्या, डिफाइन कर लेते हैं इसको। आपने बोला इट इज द, अभी तक हम लोगों ने जितनी भी बात करी, हम लोगों ने बात करी ट्रू बियरिंग की, हम लोगों ने बात करी मैग्नेटिक बियरिंग की, हम लोगों ने बात करा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का, वो सभी हॉरिजॉन्टल एंगल थे, वो सभी हॉरिजॉन्टल एंगल थे। नाउ द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्टिकल एंगल। अब हम लोग बात करने वाले वर्टिकल एंगल की। क्या बोला आपने? इट इज द वर्टिकल एंगल, इट इज द वर्टिकल एंगल। अब अगर वर्टिकल एंगल है तो किसी न किसी के बीच में होगा, between earth surface and magnetic flux line, अर्थ सरफेस एंड मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन, ये गेम है। सर एक बार समझ में नहीं आया, सही से फिर से बता दीजिए क्या बोला गया। तो इट इज द वर्टिकल एंगल बिटवीन द अर्थ, फॉर एग्जांपल दिस इज अवर अर्थ, तो अर्थ की सरफेस और मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन के बीच में जो एंगल बनने वाला है, दैट वर्टिकल एंगल विल बी कंसीडर एज द एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ डिप्रेशन। चलो एक बार समझते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज अवर अर्थ, ये अर्थ है, सभी को पता है सर दिस इज गोइंग टू बी योर नॉर्थ पोल एंड दिस इज गोइंग टू बी योर साउथ पोल। ये अपना नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन की बात करें तो 11वीं 12वीं में हम सभी ने पढ़ा था, देखा भी था, प्रैक्टिकल भी किए तो कुछ फिजिक्स में, कुछ इस तरीके से हम लोग को मिलती थी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन, कुछ इस तरीके से हम लोग को मिलती थी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन कुछ इस तरीके की मिलती थी, बोलो यार। तो आपने क्या बोला, रीड द स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है। इट इज द वर्टिकल एंगल बिटवीन द अर्थ सरफेस एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन। चलो लेट्स टॉक अबाउट द पोल, पोल की बात कर लेते हैं। और अगर मैं बेटा पोल की बात कर रहा हूं, तुम्हें नहीं लगता है एट द पोल दिस इज गोइंग टू बी योर अर्थ सरफेस, ये आपकी अर्थ सरफेस होने वाली, देख लो, दिस इज गोइंग टू बी योर अर्थ सरफेस। इफ आई टॉक अबाउट द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन, तो दिस इज गोइंग टू बी योर मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन, दिस इज गोइंग टू बी योर मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन। और अगर आप सभी ध्यान से देखेंगे तो दिस एंगल, व्हाट विल बी दिस रेड एंगल, ये रेड एंगल कितना आने वाला, कहने इससे दिस इज गोइंग टू बी द 90 डिग्री। अर्थ सरफेस और मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन के बीच का जो एंगल है, अर्थ सरफेस और मैग्नेटिक, फ्रॉम द नॉर्थ पोल द पोजीशन ऑफ द फ्लक्स लाइन विल बी समथिंग लाइक दिस। यस, क्या मैं सेम गेम बोल सकता हूं, क्या मैं सेम गेम बोल सकता हूं फॉर द साउथ पोल ऑल्सो, फॉर द साउथ पोल ऑल्सो द एंगल इज गोइंग टू बी 90 डिग्री बिकॉज दीज पॉइंट्स आर नॉट लाइंग ऑन द सेम प्लेन। एक प्लेन आपका ये है, दूसरा प्लेन फ्लक्स लाइन का आपका ये है, तो दिस इज गोइंग टू बी योर वर्टिकल एंगल, इसको आप हॉरिजॉन्टल एंगल नहीं बोल सकते। तो एट द बिगिनिंग इटसेल्फ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द हॉरिजॉन्टल एंगल एंड वर्टिकल एंगल, पॉइंट इज क्लियर। तो अगर मैं बोलूं एंगल ऑफ डिप्रेशन की अगर मैं बात करूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं एट पोल्स, पोल्स में चाहे वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, द एंगल ऑफ डिप विल बी इक्वल टू, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री एट द पोल्स। क्लियर है? अगर बेटा इक्वेटर की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट द इक्वेटर, तो देखो यहां से ये पोजीशन जा रही है, यहां से ये पोजीशन जा रही है, दिस इज योर फ्लक्स लाइन, दिस इज योर फ्लक्स लाइन। तो मैं क्या बोल सकता हूं, एट इक्वेटर,
at equator the vertical angle is going to be 0 degree. The vertical angle is going to be 0 degree. बिल्कुल सही बात है. वर्टिकल एंगल की जो वैल्यू मिल रही है आपको, दैट इज द 0 डिग्री. दैट मींस द एंगल ऑफ डिप एट द इक्वेटर, दैट मींस द एंगल ऑफ द डिप एट द इक्वेटर इज गोइंग टू बी 0 डिग्री. ये बात भी क्लियर है? बोलो हाँ. अगला डिस्कशन अगर देखें, एट एनी अदर पोजीशन, एट एनी अदर पोजीशन. तो पहले एक बार सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी को क्लियर कर लेते हैं, फिर फील्ड में कैसे कंपास सर्वे होता है उसकी भी हम लोग बात करने वाले. तो द रेंज ऑफ द एंगल इज वेरिंग फ्रॉम, विल वेरी फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, 0 to 90 डिग्री. तो ये बातें थी आपकी एंगल ऑफ डिप की. पोल की बात कर ली, इक्वेटर की बात कर ली. इसके अलावा किसी भी पोजीशन पे आप देखोगे द एंगल, द वर्टिकल एंगल विल वेरी फ्रॉम 0 to 90 डिग्री. क्लियर टू एवरीवन? यहां तक का डिस्कशन क्लियर है? सर अब बेसिक टर्मिनोलॉजी की तो बात कर लिया आपने. सर क्या क्या पढ़ लिया एक बार फिर से बता दीजिए. तो मेरिडियन समझ लिया, मेरिडियन समझ लिया, बियरिंग समझ लिया, मेरिडियन समझ लिया, बियरिंग समझ लिया, डिक्लिनेशन समझ लिया, डिक्लिनेशन का भी कंसेप्ट कर लिया, एंगल ऑफ डिप की भी बात कर ली, एंगल ऑफ डिप की भी बात कर ली. बट एक्चुअल में मेरे को कंपास सर्वे में करना क्या है, इन एक्चुअल मेरे को कंपास सर्वे में करना क्या है, अब इसकी बात करते हैं. तो व्हाट आर द वेरियस मेजरमेंट्स इन द कंपास सर्वे? बताओ भाई, व्हाट आर द वेरियस मेजरमेंट्स इन कंपास सर्वे? तो कंपास सर्वे में एक्चुअल में आपको करना क्या, जैसे फॉर एग्जांपल चैन सर्वे में, टेप सर्वे में आपने क्या किया था, चैन सर्वे में, टेप सर्वे में आपने क्या किया था? इन द चैन सर्वे और इन द टेप सर्वे वी हैव मेजर्ड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मेजरमेंट किया था. सिमिलरली अब आपको ये पता है कि इन द केस ऑफ कंपास सर्वे मेरे को हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करने. कैसे मेजर करेंगे, कैसे मेजर करेंगे, प्रॉब्लम ये है. तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास रहते हैं, इनके बारे में भी मैं आपसे बात करने वाला हूँ. कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास रहते हैं और मेन इंस्ट्रूमेंट जो रहता है हमारे पास दैट इज द कंपास. दो तरीके के कंपास हमारे पास होते हैं, एक होता है प्रिज्मेटिक कंपास, एक होता है प्रिज्मेटिक कंपास और एक होता है सर्वेयर कंपास. तो इसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल में बहुत ज्यादा बात नहीं करने वाले, दोनों में कैसे मेजरमेंट होता है इसकी बात करेंगे. तो मैं आपको एक कंपैरिजन दिखा दूंगा इंस्ट्रूमेंटल डिटेल से रिलेटेड. तो पहले बेसिक समझते हैं यार. जब कभी भी मैं कंपास सर्वे की बात करूंगा तो सर ये बात तो आपने पहले ही बता रखी है कि इन द कंपास सर्वे वी कैन ओनली मेजर द बियरिंग, और इसी को आप बोलते थे हॉरिजॉन्टल एंगल, इसी को आप बोलते थे हॉरिजॉन्टल एंगल. पूरे कंपास सर्वे में, लिसन केयरफुली, पूरे कंपास सर्वे में केवल आपको दो मेजरमेंट करने हैं. पूरे कंपास सर्वे में केवल आपको दो मेजरमेंट करने हैं. वन इज गोइंग टू बी द फोर बियरिंग, एक आपका गेम है फोर बियरिंग का, एंड द अनदर इज गोइंग टू बी योर बैक बियरिंग. बस. अब बियरिंग क्या होता है पता है. अभी नया टर्म आ गया फोर और बैक. व्हाट इज द नया टर्म ऑफ दिस फोर एंड बैक? अब हम लोग इसके बारे में बात करने वाले. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल. ये आपका कोई इस एरिया का आपको सर्वे करना था, इस पूरे एरिया का आपको सर्वे करना था. तो आगे चल के हम लोग ट्रैवर्स सर्वे की भी बात करने वाले. ट्रैवर्स क्या होता है, कितने तरीके के ट्रैवर्स होते हैं, सब कुछ बात करेंगे. फॉर एग्जांपल देयर वाज एन एरिया, ये कोई आपके ग्राउंड था, कोई भी रैंडम ग्राउंड था, और इस ग्राउंड को कवर करने के लिए आपने ट्रैवर्सिंग का यूज किया. तो ट्रैवर्स इज नथिंग बट इट इज अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइन. अब आपको यहाँ का मैप बनाना, आपको फॉर एग्जांपल यू हैव टू कलेक्ट द डेटा, और उसी डेटा के बेसिस पे यू वांट टू प्रिपेयर द प्लान और मैप. तो फॉर एग्जांपल दिस इज अ ओपन ट्रैवर्स. तो ए बी सी डी एंड ई, ये आपका ए बी सी डी एंड ई एक कोई ट्रैवर्स था. अब अगर मैं बोलूं, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं व्हाट इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ सर्वे? सर्वे की डायरेक्शन क्या होने वाली, क्या आप मुझे ये बता सकते हो? तो ऑब्वियसली इन जनरल वी आर गोइंग टू मूव फ्रॉम ए टू ई. हम लोग ए से ई की तरफ मूव करने वाले. कैन आई से दिस इज द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ द सर्वे? कैन आई से दिस इज द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ द सर्वे? यस. तो लेट्स से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द सर्वे. ये आपकी डायरेक्शन ऑफ सर्वे जहां पर हम लोग बात करने वाले. अगर कोई ऐसा मेजरमेंट है,
अगर कोई एक ऐसा मेजरमेंट है जो मैं ई से डी की तरफ करता हूं, लेट से जो कोई भी मेजरमेंट मैं ई से ए की तरफ करूंगा, उस मेजरमेंट को क्या मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में मेजरमेंट कर सकता हूं? क्या मैं उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में सर्वे बोल सकता हूं? बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इफ द बेसिक्स आर क्लियर, तो आपसे कंपास सर्वे क्या, पूरे सर्वे का कोई भी सवाल गलत होने वाला नहीं है, कुछ भी पूछ ले। बट बेसिक डिस्कशन शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बहुत धीमे धीमे बात कर रहे हैं, बहुत आराम आराम से बात कर रहे हैं, तो आई होप यू विल गॉट द पॉइंट। तो मैंने बोला कि सर कंपास सर्वे की हेल्प से मुझे अगर किसी तरीके से अगर मैप बनाना, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, तुम्हें नहीं लगता है अगर मैं किसी भी तरीके से ये एंगल मेजर कर दूं, लेट्स से दिस एंगल इज θ1, लेट्स से दिस एंगल इज θ1, लेट्स से दिस एंगल, सर ये आपने इस लाइन से क्यों, दिस इज योर मैग्नेटिक मेरिडियन, दिस इज योर मैग्नेटिक मेरिडियन। सिमिलरली मैं यहां पर भी मैग्नेटिक मेरिडियन लोकेट कर सकता हूं, सभी स्टेशंस पे मैग्नेटिक मेरिडियन को लोकेट कर सकता हूं, ये आपको पता है। तो वी कैन लोकेट द मैग्नेटिक मेरिडियन विद द हेल्प ऑफ कंपास। और ये एंगल, लेट्स से दिस एंगल इज गोइंग टू बी θ2, दिस एंगल इज गोइंग टू बी लेट्स से θ3, दिस एंगल इज गोइंग टू बी θ4 एंड सो ऑन। तो अगर ये θ1, θ2, θ3, θ4 आपको पता है, आई एम ऑल्सो मेजरिंग दिस लेंथ, ये L1 है, दिस इज द लेंथ L2, दिस इज द लेंथ L3 एंड दिस इज द लेंथ L4। सर ये लेंथ कैसे मेजर करेंगे? सर ये लीनियर मेजरमेंट कैसे करेंगे? तो इन सभी के लिए आपको पता है, फॉर द लीनियर मेजरमेंट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द चैन और टेप सर्वे। तो चैन और टेप सर्वे की हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर रखी थी। फील्ड मेजरमेंट की अगर मैं बात करूं बेटा, फील्ड मेजरमेंट की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं इतनी डिटेल्स को लोकेट कर लेता हूं, अगर मैं इतनी डिटेल्स को लोकेट कर लेता हूं, तो क्या मैं इस जगह का मैप बना सकता हूं? क्या मैं इस जगह का मैप बना सकता हूं? तो कैसे डेटा आप रिकॉर्ड करेंगे? तो सी द फॉर्मेट, तो आप फील्ड बुक में कैसे लिखने वाले? तो इन द फील्ड बुक यू विल मेक अ टेबल लाइक दिस। तो आप यहां पर लिखने वाले लाइन, यहां पर आप लिखने वाले 4 बियरिंग एंड दैट इज द बैक बियरिंग। अभी तक मैंने 4 बियरिंग और बैक बियरिंग क्या होता है उसको एक्सप्लेन नहीं किया है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे 4 बियरिंग और बैक बियरिंग के बारे में, उसके बाद मैं इस एग्जांपल में वापस आता हूं। तो लेट्स से टेक अनदर एग्जांपल। तो ये मान लो आपका ABCD ट्रैवर्स है, ध्यान से देखना। अब मैं इसकी एक लाइन उठा के दिखाता हूं तुम्हें AB, इसकी मैं तुम्हें एक लाइन उठा के दिखाता हूं AB को। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सर्वे फ्रॉम A to D, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सर्वे फ्रॉम स्टेशन A टुवर्ड्स द स्टेशन D। क्या मैं यहां से अगर मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ फिक्स कर दूं, तो दिस इज गोइंग टू बी योर मैग्नेटिक मेरिडियन। तो दिस एंगल, लेट्स से दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा, द थीटा वी आर मेजरिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और द बैकवर्ड डायरेक्शन। हम A से B की तरफ एंगल को मेजर कर रहे हैं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं थीटा वी आर टेकिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ द सर्वे? लिसन केयरफुली, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ द सर्वे, कैन वी से लाइक दिस? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट द, एक एंगल में और इसी लाइन का मेजर करता हूं, द हेयर दिस इज गोइंग टू बी योर मैग्नेटिक मेरिडियन, हेयर दिस इज गोइंग टू बी योर मैग्नेटिक मेरिडियन। नाउ लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, नाउ लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल एंड दिस इज गोइंग टू बी फाई। और इस फाई एंगल की बात करें तो क्या मैं बोल सकता हूं दिस फाई एंगल वी आर मेजरिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन ऑफ द सर्वे? द बैकवर्ड डायरेक्शन ऑफ सर्वे में हम मेजरमेंट कर रहे हैं, यस और नो? Because we are taking this angle from B to A, that's why I am saying this is the back bearing. तो इन शॉर्ट में बोल सकता हूं किसी भी लाइन के लिए, गेट बंद कर दो। इन शॉर्ट में बोल सकता हूं किसी भी लाइन के लिए, AB के लिए, there are 2 types of bearing we can measure. There are 2 types of bearing we can measure. One is going to be the 4 bearing and another is going to be your back bearing. तो what is the 4 bearing? 4 bearing क्या इसको समझते हैं? जब आपने A से B की तरफ मेजरमेंट किया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मेजरमेंट किया, तो दिस इज गोइंग टू बी द थीटा इज गोइंग टू बी द 4 बियरिंग ऑफ द लाइन AB। मैं 4 बियरिंग की बात करूं, मैं बैक बियरिंग की बात करूं, हर टाइम मैं एंगल मेजर कर रहा हूं फ्रॉम द नॉर्थ। वी आर टेकिंग द एंगल फ्रॉम द मैग्नेटिक नॉर्थ इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहां तक की बात क्लियर है? सभी जगह आप 4 बियरिंग की बात कर लें, आप बैक बियरिंग की बात कर लें, बियरिंग का मतलब एंगल, बियरिंग का मतलब हॉरिजॉन्टल एंगल, इन ऑल केसेस
In all cases, we are measuring the angle from the north in the clockwise direction. Yes or no? From the north in the clockwise direction जो आप angle measure कर रहे हैं. Let's say this is the phi. So phi is going to be the back bearing because we are taking the measurement from B to A. आज के बाद मैं ये समझ गया हूं, मैं किसी भी लाइन के लिए दो बियरिंग्स को मेजर कर सकता हूं. वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ सर्वे पे, वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट पे. तो बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ सर्वे, बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट, वी कैन टेक द टू बियरिंग्स ऑफ एनी लाइन. We can take the two bearings of any line. One will be the fore bearing, another will be the back bearing. चलो तो पिछले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं. तो अभी यहां पर आप मुझे बताने वाले हैं क्या कि ये θ1, ये θ2, ये θ3, ये θ4. कैन आई से ऑल दीज आर द फोर बियरिंग्स? बोलो, क्या मैं बोल सकता हूं ऑल दीज आर द फोर बियरिंग्स because we are taking this angular measurement in the forward direction of the survey, in the direction of survey. Yes. अगर सुनना ध्यान से, अगर इसी केस में क्या सर ए बी लाइन की मैं दूसरी कोई बियरिंग भी मेजर कर सकता हूं? यस, यू कैन ऑल्सो मेजर द बियरिंग ऑफ लाइन ए बी एंड दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम द नॉर्थ इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. लेट्स से दिस इज गोइंग टू बी phi1. लेट्स से दिस इज गोइंग टू बी द phi1. Similarly, for the line BC line की अगर बात करें तो we can take this angle from the north in the clockwise direction. This is going to be the phi2. This is going to be the phi2. If I talk about the next line CD, अगर next line CD की बात करें तो we can measure this angle and this angle is going to be phi3. This angle is going to be phi3. Similarly, अगर last line की बात करें, DE line की बात करें तो we can take this angle, let's say this is going to be the phi4. This is going to be the phi4. तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं ये phi1, ये phi2, ये phi3 and so on. All these are the back bearings. All these are the back bearings of the line. ये back bearings हैं आपकी अलग अलग लाइंस की. तो एक बार जरा मुझे सभी लोग कंफर्म कर देंगे कि द डिस्कशन अबाउट द फोर बियरिंग एंड द बैक बियरिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ सर्वे हो गया, ये बैकवर्ड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सर्वे हो गया, और इसके बेसिस पे दोनों ही हॉरिजॉन्टल एंगल हैं, दोनों ही बियरिंग है. आपने इसका क्लासिफिकेशन किया है केवल डायरेक्शन के बेसिस पे. आपने इसका क्लासिफिकेशन किया है केवल डायरेक्शन के बेसिस पे. वी हैव क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ओनली. आई होप द डिस्कशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का गेम क्लियर है. हर लाइन के लिए हम लोग दो बियरिंग मेजर करने वाले हैं, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग. तो फॉर एग्जांपल नाउ आई विल रिकॉर्ड द डेटा समथिंग लाइक दिस. इस एग्जांपल को कंप्लीट कर लेते हैं. तो आपने फील्ड में तीन मेजरमेंट कर लिया. आपने थीटा मेजर कर लिया, आपने फाई मेजर कर लिया, आपने लेंथ मेजर कर ली. तो अभी भी वी आर डूइंग वन लीनियर मेजरमेंट एंड वन एंगुलर मेजरमेंट. तो वी विल रिकॉर्ड द डेटा समथिंग लाइक दिस in the field book. तो if I talk about the line AB, अगर मैं AB लाइन की बात करूं तो can I say θ1? Can I say the θ1 is the forebearing of the line AB and phi1 is the back bearing of the line AB, and the length of the line will be let's say L1. Length of the line will be let's say L1. Clear है भाई? Similarly, if I talk about the next line और next line की बात करें तो let's say next line is BC. Next line is BC. θ2 is going to be the forebearing, phi2 is going to be the back bearing, and L2 is going to be the length. L2 is going to be the length. Yes or no? Similarly, if I talk about the next line बेटा, if I talk about the next line CD, तो CD के लिए भी आपने दो एंगल मेजर किए. We have measured the θ3, we have measured the phi3, and we have measured the length also, and so on. इस तरीके से हम फील्ड पे जाके डेटा को कलेक्ट करने वाले. इस तरीके से हम जाके फील्ड में डेटा को कलेक्ट करेंगे. With the help of compass, we are going to measure this θ1, θ2 और phi1 और phi2. With the help of chain or tape, we can measure these distances L1 and L2. हम इन डिस्टेंसेस को मेजर कर सकते हैं L1, L2 and so on. ये पूरी कहानी चलने वाली है आपकी कंपास सर्वे में.
अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि कंपास सर्वे में क्या क्या चीजें मेजर करनी है। वी विल ऑल्सो डिस्कस कि हाउ वी कैन मेजर, तो वर्किंग भी देखने वाले कंपास की कि कैसे कंपास सर्वे में हम थीटा और फाई को मेजर कर सकते हैं। अब इस थीटा, फाई और एल अलग अलग लाइंस के फोर बियरिंग, बैक बियरिंग और एल के बेसिस पे द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिपेयर द मैप। आपको इस पर्टिकुलर जगह का मैप बनाना है, उसके लिए भी वी विल सी द एग्जांपल जहां पर हम लोग मैप कंस्ट्रक्ट करने वाले बेस्ड ऑन दिस डिटेल। तो आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव ये था। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट किया उसको देख लेते हैं। तो इन टुडेस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द, हम लोगों ने बात कर ली मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की, बात कर ली, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मेजरमेंट्स। हम लोगों ने मेजरमेंट्स की बात कर ली। वी हैव आल्सो इन कंपास सर्वे, कंपास सर्वे में क्या क्या मेजरमेंट करने वाले, एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड वन टॉपिक दैट इज द एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप, ये हमारी आज की क्लास का डिस्कशन था। आई होप द डिस्कशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई होप द डिस्कशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, वी आर ओनली गोइंग टू टेक 2 रीडिंग्स, फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ एनी लाइन, और इन्हीं फोर बियरिंग और बैक बियरिंग के बेसिस पे क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं, वी विल टॉक अबाउट दैट ऑब्जर्वेशंस, कैसे चीजों को अप्लाई करते हैं। कुछ बातें हम लोग करने वाले हैं प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास के बारे में, और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि फील्ड में कैसे आपका चयन सर्वे, सॉरी, कंपास सर्वे वर्क करता है। द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। चलो, तो ये आज की क्लास का डिस्कशन था। जिन भी लोगों ने क्लास को लेट ज्वाइन किया है, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू। तो जैसा आपको पता है, न्यू बैचेस प्लस पे नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो गेट के लिए जो बैचेस आपके स्टार्ट हो चुके हैं वो 8 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं, और इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री के लिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री के लिए जो आपके बैच स्टार्ट हो रहे हैं वो 18 फेब से, कल से स्टार्ट हो रहे हैं। दीज आर द प्लस बैचेस, द डिटेल आई हैव शेयर्ड। तो आप सभी इन बैचेस के साथ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट कंप्लीट योर सब्सक्रिप्शन प्रोसेस यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। तो जस्ट विजिट द अनअकैडमी ऐप और वेबसाइट, आपको अनअकैडमी ऐप और वेबसाइट विजिट करना है। सेलेक्ट the goal, the exam you want to prepare for, to select the goal as GATE and ESE. Select the type of subscription you want to take. So as you know, there are 2 types of subscription, plus and iconic. So here I am explaining for the plus. Then select the duration of your subscription. So you can go for the 12-month or 18-month subscription if you are a college pass out student, और अगर अभी आप कॉलेज में है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर स्टूडेंट है, you can go for the 24-month subscription. The long-term subscription is going to be economical for you because you can target the multiple exam like GATE. In one subscription, you can target the multiple exam, ESE, PSUs, states exam, as well as your semesters exam. तो semesters exam की भी ये सारी चीजें completed है। तो yes, the long-term subscription is going to be better option for you. Here you will apply, you all can apply my referral code, that is KKS10. So just by applying this code, you are going to get 10% off on your subscription cost, and these are the prices after the discount. Same process you can follow in the case of Iconic. Iconic के लिए भी आप same process को follow कर सकते हैं. You can go for the 12-month or 24-month subscription. Again, the long-term subscription is going to be economical for you. So make sure whenever you are going to complete your subscription process with Unacademy, you are using this code, that is KKS10, to avail 10% off on your subscription cost and to connect with me. This is the link of the Telegram group. तो जिन भी बच्चों ने अब तक Telegram ग्रुप का नहीं ज्वाइन किया है, तो सभी क्लासेस के अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले, एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू प्रोवाइड ऑल द पीडीएफ्स ऑफ यूट्यूब क्लासेस। तो यूट्यूब क्लासेस के सर्वेइंग का जो भी डिस्कशन है वो सारे पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड किए जाएंगे, दैट इज अनअकैडमी गेट एंड ESE CE। इस लिंक को विजिट करके आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। These are some best channels from where you can start your learning. You can also recommend these channel to your other branch friends so that they can also start preparing for GATE or ESE or any other exam. तो you can see this, यहाँ पर आपकी सिविल की क्लासेस चल रही हैं। तो these are the some best channels जहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं।
सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द टुडेज क्लास। हमारी आज की क्लास का ये डिस्कशन था और कल हम लोग कंटिन्यू करने वाले। टुमारो वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज गोइंग टू बी द लोकल अट्रैक्शन। तो कल का जो हमारा टॉपिक होने वाला है कंपास सर्वे में, दैट इज गोइंग टू बी द लोकल अट्रैक्शन और यू कैन एक्सपेक्ट अ 2 मार्क प्रॉब्लम in the GATE exam. Conceptual topic, very important topic. Tomorrow your class will be at 8:30 PM. सेम टाइम पे मिलने वाले 8:30 PM पे सर्वेइंग का डिस्कशन करेंगे। यूट्यूब पर आपकी क्लास होने वाली है। तो दिस इज द डिटेल ऑफ द नेक्स्ट क्लास। डू लाइक एंड शेयर द सेशन, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग।